دور جدید میں بھی سندھ کے شہر تلہار کے بھاسی گیس جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ شہری مہنگے داموں لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مدنی وسائل سے مالا مال ضلع بدین کے شہری سوئی گیس جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ سندھ کے شہر تلہار اور گرد و نواح میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سراپے احتجاج ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں لکڑیاں بھی 800 روپے فی من خریدنا مشکل ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ گیس کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ مکلوڈ گنج کے نہر کے کنارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جو کسی بھی حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے علی احمد ساگر۔ چوپٹ راج محکمہ انہار کے ملازمین ڈیوٹی کرنا بھول گئے۔ 15 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ نہر فوڈوا کے پشتے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ملازمین کی نااہلی کے باعث اب صورتحال یہ ہے کہ نہر 40 فٹ دور ہائی وے روڈ کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اب نہر جو ہے وہ 60 میٹر یا 70 میٹر تھی، اب وہ 100 میٹر سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ جو سڑک ہے اس کے اوپر پانی چل رہا ہوگا۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ حادثے ہو رہے ہیں، لوگوں کی جو قیمتی جانیں وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ نہر کے پشتوں کو مکمل طور پہ پختہ کروایا جائے اور ان کی تعمیر و مرمت کا کام جلد از جلد شروع کروایا جائے، اور جو ملازمین گھروں میں بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو اپنی ڈیوٹی پہ آنا چاہیے، اور تاکہ اکثر اوقات رات کے وقت جو ہے موٹر سائیکل کاریں نہر میں گر جاتی ہیں۔ حادثات کے نتیجے میں قیمتی جانیں ضائع ہونے کے باوجود بھی نہر کے پشتوں کی مرمت کا کام شروع نہیں کیا جا سکا۔ اگر ملازمین اسی طرح گھروں میں بیٹھے تنخواہیں لیتے رہے تو نہر مکمل سڑک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ رینالہ خرد کا واحد اسپورٹس کمپلیکس خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر رفو چکر ہو گئے۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے رانا نواز۔ رینالہ خرد کا واحد سپورٹس کمپلیکس خستہ حالی کا شکار ہے۔ کھڑکیاں دروازے ٹوٹنے کی وجہ سے نشیوں نے اسے اپنی اماج کا بنا لیا۔ واش روم مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ بیڈمنٹن اور والی بال کا فرش جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا ہے اور کئی کھلاڑی گر کر زخمی ہو چکے ہیں۔ رینالہ خرد اور رینالہ خرد سٹی کے اندر سپورٹس کے حوالے سے یہ جعفر جمنیزیم سپورٹس کمپلیکس بہترین جگہ تھی، جہاں وکلا دیگر سول سوسائٹی سپورٹس مین یہاں کھیلنے کے لیے آتے تھے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہریوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اسپورٹس سے مطالبہ کیا کہ رینالہ خرد کے اکلوتے جعفر سپورٹس کمپلیکس کی خستہ حالی کا نوٹس لے کر فوری اس کی تعمیر نو کا کام شروع کروایا جائے۔ کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ رانا نواز نذیر، سچ نیوز، رینالہ خرد۔ سندھ کی تحصیل تلہار کے تعلیمی ادارے خستہ حالی کا شکار ہو گئے۔ طلبہ مصنوعی جھونپڑیوں اور درختوں کے سائے تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ محکمہ تعلیم ضلع بدین کی چشم پوشی کے باعث تحصیل تلہار کے متعدد علاقوں میں کئی سالوں سے اسکولوں کی حالت خستہ ہے، جس کے باعث متعدد اسکول بند ہیں، جبکہ اساتذہ سمیت دیگر عملہ محکمہ تعلیم کی ملی بھگت سے گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے لگا۔ طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ تحصیل تلہار کے یونین کونسل راجو خانانی کا اسکول بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ فرنیچر نہ ہونے کے باعث طلبہ درختوں کے سائے تلے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ طلبہ اور علاقہ مکینوں نے نگران حکومت سندھ اور محکمہ تعلیم سے مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد اسکول کی عمارت تعمیر کی جائے اور فرنیچر سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جائیں، جس سے طلبہ سے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں۔ انتظامیہ کی غفلت، پپلا میں ریلوے کوارٹرز بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا۔ ریلوے اسٹیشن سے بازار تک کا راستہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ مزید جان لیتے ہیں راؤ عمران کی رپورٹ میں۔ دور جدید میں بھی ریلوے اسٹیشن پپلا سہولیات سے محروم ہے۔ ریلوے کوارٹر بھی ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن سے بازار تک کا راستہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے دونوں اطراف خودرو جھاڑیاں جنگل کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ صرف راتی ٹریناں رکدیاں، اتنے چوری ڈکیٹی دا بڑا خطرہ ہوندا ہے۔ مہربانی کر کے لائٹنگ لوائی وجے تے مسافراں نوں بڑی پریشانی ہوندی ہے۔ اتنے جہاں ٹرینوں کے رات کے وقت اسٹیشن پر سٹاپ ہیں، وہیں لائٹنگ کا بھی خاطر خواہ کوئی انتظام نہیں ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے دونوں اطراف جنگلی جھاڑیاں ہونے کی وجہ سے متعدد بار مسافر چوروں سے لٹ چکے ہیں۔ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اسٹیشن پہ لائٹنگ کا پراپرلی بندوبست کیا جائے اور اسٹیشن کے دونوں اطراف جو خودرو جھاڑیاں ہیں انہیں فی الفور تلف کیا جائے تاکہ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں کمی آ سکے۔ محمد عمران، سچ ٹی وی، پپلا۔ سیت پور اور اس کے مضافات کے دیہاتوں میں دھان کی فصل کی کٹائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مناسب ریٹس نہ ملنے کی وجہ سے کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات عامر حجات خان کی رپورٹ میں۔
सीतपुर और इसके मलहका देहाती इलाकों में इन दिनों धान की फसल की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। काश्तकारों की मुसलसल कई महीनों की मेहनत रंग लाने लगी। काश्तकारों की जानिब से फसल की कटाई के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। धान की फसल के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्क खुदादाद पाकिस्तान का शुमार इन चंद ममालिक में होता है जहाँ बड़े पैमाने पर धान की फसल काश्त की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से काश्तकारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। काश्तकारों का कहना है कि धान की फसल को मुसलसल पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि सीतपुर में नहरी निजाम न होने की वजह से ट्यूबवेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से धान की फसल को काश्त करने में अखराजात ज्यादा आते हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से धान के रेट जो मुकर्रर किए गए हैं इंतहाई कम है। को काफी महंगी पै गई है, डीजल महंगे होने की वजह कनु और नहरी पीज न होने की वजह कनु इन चावल का जो है मुनासिब रेट मुनासिब सा को एवरेज नहीं बढ़ती पई। काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि धान के सरकारी रेट्स में इजाफा किया जाए ताकि काश्तकारों को फसल की काश्त से लेकर इख्ताम तक होने वाले अखराजात निकाल कर मुनाफा हासिल हो, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सकें। कैमरा अमरयात खान, साइट टीवी, सीतपुर। पाक पतन शरीफ स्मोक के बाद शदीद धुंध की शदीद लपेट में है। बारिश के बाद सर्दी ने बाकायदा एंट्री दे दी। बारिश गंदम की फसल के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट में। पाक पतन शरीफ में गुज़िश्ता कई रोज से स्मोग ने अवाम को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर दिया था। कल और परसों में होने वाली अब्र रहमत की वजह से स्मोग की तो छुट्टी होगी, सर्दी और धुंध की एंट्री हो गई है। मुसाफिरों और स्कूल में जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात है। अलबत्ता किसान खुश दिखाई देते हैं क्योंकि धुंध और सर्दी से इनकी गंदम की फसल को फायदे ही फायदे हैं। बड़ा मुश्किल आना जाना बड़ा बीमारियां बढ़ गई, बच्चे परेशान, आप भी सारे परेशान है। कोई धुंध की वजह कणका का बड़ा फायदा है। ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਗ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, लेकिन बारिश अल्लाह ताला की बारिश जिहड़ी हुई है ना इस दे विच स्मोग खत्म हो गई। धुंध और सर्दी शहरी इलाकों की निस्बत दई इलाकों में बहुत ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जिन इलाकों में सैलाब आया वहाँ अभी भी जमीनें खुश्क नहीं हुई। किसानों के मुताबिक धुंध और सर्दी से हमें मुश्किलात तो हैं, लेकिन हमारी फसलों के लिए ये सूदमंद भी हैं। स्कूल के बच्चों और मुसाफिरों के लिए तो धुंध मुश्किलात पैदा कर रही है, अलबत्ता किसानों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रही है क्योंकि गंदम की फसल को इस धुंध का बहुत ज्यादा फायदा है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शरीफ। ऊद शरीफ में स्मोक के खतरात बढ़ने लगे। हुकूमती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। फसलों को जलाने से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा। इसी पे रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर। मौसम ने करवट बदला तो स्मोग में भी इजाफा होने लगा। सुबह से शाम तक स्मोग रहने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी। हुकूमती अहकामात के बावजूद किसानों ने KLP रोड के अतराफ पर जमीन को साफ करने के लिए सूखे घास को आग लगा दिए, जिससे दूर दराज से आने जाने वाले ड्राइवर हजरात को सख्त मुश्किलात पेश आने लगी। इसके अलावा आग के धुआं बढ़ने से स्मोग में भी इजाफा होने लगा। स्मोग की वजह से बच्चों और बड़ों समेत खवातीन और बुजुर्गों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की जरा सी गफलत कहीं बड़ा हादसा न पेश आए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर भावलपुर, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया से मुतालबा किया कि भट्ठू और रोड के अतराफ पर आग लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि हादसात समेत शहरी बीमारियों से बच सके। कैमरामैन अब्बास रज़ा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज़ और शरीफ। रहीम जार खान में स्मोक के बायस मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लगी। तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजाते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। पंजाब भर में स्मोक के बायस जहां निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर है, वहीं रहीम यार खान में भी स्मोक की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्मोक के बायस सांस की तकलीफ में मुब्तला अफराद ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सांस की शिद्दत में दुश्वारी में इजाफा हो सकता है। मरीज़ बुखार खांसी के साथ, ऑक्सीजन की कमी के साथ वो हमारे पास इमरजेंसी में या हमारे OPD में आते हैं। स्मोक की वजह से अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ने लगा है, जिससे ज्यादातर मरीज नज़ला, जुकाम, सांस की नालियों में तकलीफ और शदीद खांसी और आंखों के मर्ज को रिपोर्ट किया गया है। OPD और अस्थमा के जो केसेस हैं उनमें एक्सरबेशन के केसेस जो है ना ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी जो हम मरीज़ों को जो एहतियाती तदाबीर में बताते हैं उनमें ये शामिल है कि आप बाकायदगी से जो है ना मास्क का इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स ने शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने और मास्क और चश्मे का इस्तेमाल लाजिम करार देते हुए दमा और COPD के मरीजों को एहतियात बरतने की हिदायत। सर्द हवाओं का झोंका आते ही पसरूर में मछली पॉइंट्स के स्टॉल सज गए। स्टॉल्स पर शहरियों का तांता बध गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असर।
पसरूर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मछली पॉइंट का रुख कर लिया। सर्दी के मौसम में मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरी मछली की कीमतें सुनकर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। पिछले सीजन मछली बहुत सस्ती सी, इस सीजन मछली बहुत ज़्यादा महंगी है। मारा बंदा लेके नहीं खा सकता, बहुत मछली ज़्यादा महंगी बिक रही है। मौसम चेंज हो गया, हमने मछली खानी शुरू कर दी है, ठीक है, मुर्गी और बड़ा गोश्त हमने छोड़ दिया। मौसम जो चेंज हो गया तो इस लिहाज से हम मछली खाना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को मछली खिला रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल मछली बहुत महंगी है, लेकिन सर्दी का मौसम एंजॉय करने के लिए मुर्गी और गोश्त को छोड़कर मछली खरीदना शुरू कर दी है। सर्दी बढ़ते ही पसरूर के शहरियों ने मछली का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शहरियों का कहना है कि मछली सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। चीचावतनी में खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान को छूने लगीं। खरीदार दुगने दाम सुनकर खाली हाथ लौटने लगे। गरीब आवाम के लिए सर्दियों की सौगात खाना खा बनकर रह गया। रिपोर्ट करेंगे मेहर अजहर। मुल्क भर की तरह चीचावतनी में भी सर्दी की आमद से ही शहरियों ने खुशक मेवाजात की दुकानों का रुख कर लिया। खुशक मेवाजात में अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता, खजूर, चलगोजा इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, लेकिन आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। शहरी खुशक मेवाजात खरीदने तो गए, लेकिन कीमतें सुनकर परेशान। मैं इधर ड्राई फ्रूट खरीदने आया था, जो कि सर्दियों के लिए एक मुफीद तोहफा है, इंसानों के लिए बहुत मुफीद है इंसानी सेहत के लिए, लेकिन इधर महंगाई के बायस से इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। शहरियों का कहना है कि मौसम सरमा में खुशक मेवाजात जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर। गरीब आवाम खुशक मेवाजात के बारे में सोच सकते हैं, खरीद नहीं सकते। शहरियों की हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि खुशक मेवाजात की कीमतों में कमी लाई जाए, ताकि गरीब आवाम भी इसको खरीद कर खा सके। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ मेहर अजहर, सच न्यूज़, चीचावतनी। डचकोट में भी गंदम की काश्त शुरू होते ही खाद नायाब हो गई। डीलर्स खाद ब्लैक में फरोख्त करने लगे। किसान महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे नईम अख्तर। पूरे पंजाब की तरह डचकोट में भी गंदम की बिजाई का सीजन शुरू हो चुका है। ताहम किसान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है, क्योंकि किसानों को खाद ब्लैक में महंगे दामों मिल रही है। खाद जो है वो हमें नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो वो 14,000 रुपये की एक बोरी है। छोटे ज़िम्मेदार के लिए बहुत मुश्किल है कि वो 14,000 रुपये की बोरी डाले। किसानों की हुकूमत पंजाब से अपील है कि इनको खाद और बीज पर सब्सिडी दी जाए, ताकि वो गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें और मुल्क गंदम में खुद कफील हो। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। सब्जियों और फलों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। रोज़ बरोज़ की बढ़ती महंगाई ने मुतवसत तबके का जीना अचीरन कर दिया। रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। देहरादून पना में सब्जियां और फ्रूट अवामी पहुंच से दूर होने लगे। महंगाई की शदीद लहर के असरात सब्जियों और फलों तक भी पहुंच गए। ओपन मार्केट में सब्जियों और फ्रूट की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। ओपन मार्केट में हांडी की जान प्याज 150 रुपए फी किलो, टमाटर 200 रुपए, लहसुन 400 रुपए, जबकि फ्रूट में सेब 250 रुपए, अंगूर 350 रुपए किलो, जबकि केला 150 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई और गिरां फरोशी से शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई है। खावन पीवन का इंतजाम ही जरा मजदूरी 500-700 कमा दो, क्या करें। बेरोजगारी और शदीद महंगाई, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, देहरादून पना। चांदलेवाला में लकड़ी की मांग बढ़ते ही टाल मालकान ने कमर कस ली। लकड़ी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया, जिसके बाइस शहरी शदीद परेशान है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट में। मौसम बदलते ही जहां लकड़ी की मांग बढ़ जाती है, वहीं टाल मालकान ने भी लकड़ी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। टाल मालकान भी मौसम बदलते ही अपनी रवायात बदलने लगे। तहसील तांदलेवाला में सर्दी के आगाज से ही लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। सर्दी की शिद्दत से बचाव और घरेलू जरूरत के लिए नवंबर में ही शहरियों ने लकड़ी के टाल का रुख कर लिया है। यही वजह है कि एक दिन में सैकड़ों मन लकड़ी टाल पे फरोख्त होने लगी है। दसो भी असी मोटरसाइकिल पेट्रोल बाल के आया 150 तो अद्धा लीटर है जी, ते इस तू अगा दसो जी लकड़ी लविए कि असी खंड चाह लविए कि घ्यो लविए कि
गैस तक कितने चढ़ गया जी। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे ने जहां मुतासर किया, वहीं लकड़ी की कीमतें भी आसमां पे पहुंच चुकी हैं। मौसम के रुख के साथ ही टाल मार्कान ने लकड़ी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करके शहरियों के लिए कीमतों का भारी बोझ सर पे रख दिया है, जिसपे मुख्तलिफ हलकों ने लकड़ी की खुद साख्ता कीमतों के इजाफे पे शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। अब्बासपुर में गिरा फरोशों की शामत आ गई। तमाम एलपीजी गैस एजेंसीज और सेल पॉइंट सील कर दिए गए। रिपोर्ट करेंगे मुबश्शिर नकवी। अब्बासपुर में मसनूई महंगाई का राज है। शहरी जहां महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, वहीं शहर में मसनूई महंगाई ने भी शहरियों का जीना दोबर कर रखा है। जब अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ती हैं तो मार्केट में फौरी रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि रेट कम होने की सूरत में आम सारिफ को ये कहकर महंगा दिया जाता है कि नया स्टॉक मार्केट में हमारे पास अभी तक नहीं आया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्बासपुर अरबाब शाहीन की खुसूसी हदायत पर तमाम एलपीजी गैस फरोशान की मीटिंग तलब की गई, जिसमें तमाम अखराजात और मामलात को देखने के बाद रेट लिस्ट जारी की गई, जिस पर ताजरों ने फरोख्त करने की यकीन दहानी भी करवा दी। बाद अज़ां मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से गैस सिलेंडर महंगे दामों मिलने की शिकायत एसी ऑफिस में पहुंचाई। जब ओगरा की जानिब से कम किया जाए तो यहाँ पर बहाना कर दिया जाता है कि स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है पुराना, और इस पे अकाम बाला तवज्जो दें और आवाम के साथ ये नाइंसाफ़ी की जाती है। इस पे अकाम बाला तवज्जो दे के नए रेट जो है वो अमल दरामद। एलपीजी गैस एजेंसी सील होने के बाद शहरियों की जानिब से एसी अरबाब शाहीन के इन इक़दाम की जहाँ तारीफ हो रही है, वहीं आम शहरी भी गैस समेत दीगर अशिया सस्ती मिलने की तवक्को करते हुए खुश नजर आ रहा है। कैमरामैन सैयद जवाद के साथ मुबश्शिर नकवी, सच टीवी, अब्बासपुर, आज़ाद कश्मीर। जीप रैली का तीसरा रोज 100 से ज्यादा मर्द व खवातीन रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। शायकीन की बड़ी तादाद रैली देखने के लिए छांगा मांगा टेले पर पहुंच गई। रिपोर्ट करेंगे चौक सरवर शहीद से चौधरी साजिद अली। थल के सहराओं में जीप का तीसरा रोज है। 100 से ज्यादा जीप रेसर हिस्सा ले रहे हैं। 200 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है। पार्टिसिपेट किया है, इस साल भी इंशाल्लाह मौजूद है। पूरी कोशिश है अच्छा पोजीशन लाने के लिए। छांगा मांगा टीले पर शौकीन की बड़ी तादाद 8वीं थल जीप रैली को एंजॉय कर रही है। थल में 8 थल डेजर्ट जीप रैली जो कि हम एंजॉय कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ फैमिलीज के साथ, और भी दोस्त आए हुए हैं। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की जानब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी दी है, और जो हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो क्रॉसिंग है वहाँ पे हमने हैवी डिप्लॉयमेंट की है। इंतजामिया की जानब से तमाम तर इंतजामात बेहतरीन किए गए हैं। 8वीं थल जीप रैली का सुल्तान कौन होगा, इसका फैसला तो 12 तारीख को होगा। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जैकबाबाद के डीसी चौक पर तूफ़ानुल अक्सा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मज़ीद दोस्त मोहम्मद लाशारी की रिपोर्ट में। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जैकबाबाद के डिप्टी कमिश्नर चौक पर मीर लियाकत अली खान लाशारी की जानिब से तूफ़ानुल अक्सा एहतजाजी जलसा किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। आज का जो प्रोग्राम है वो जैकबाबाद के तमाम सियासी और समाजी तंजीमों ने मिलकर अरेंज किया है। हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम फ़लस्तीनियों के साथ है। आज के इस एहतजाजी जो जलसा है उसका मकसद ये है कि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं, जो बच्चे हैं मासूम, जो हमारी माएँ बहनों को जो शहीद किया जा रहा है, उनके साथ इजहार यकजहती है। जलसागाह में इसराइल, अमेरिका और इंडिया के झंडे नजर आतिश किए गए। मुकर्रीन ने हुकूमत से फ़लस्तीन की हिमायत के लिए अहम किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन अयास उमर के साथ दोस्त मोहम्मद लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। टोबा टेक सिंह के निजी स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा और तालिबात ने अपने हाथों से तैयार करदा साइंसी मॉडल पेश किए। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक सिंह के मुकामी स्कूल में सालाना साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें वालिदैन, टीचर्स और तलबा तालबात ने शिरकत। साइंसी अलूम की आगाही के लिए नुमाइश में घरों में इस्तेमाल होने वाली अशिया और जदीद अलूम के मुतल्लिका मॉडल रखे गए। बच्चों ने नुमाइश में मेडिकल, ज़राअत, पावर प्लांट और मसनूई दिल के मॉडल रखे, जिसे वालिदैन ने बेहद पसंद किया। टरबाइन के जरिए जो वाटर कूल होता है वो टरबाइन में आता है, टरबाइन के जरिए से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। आज के साइंस के विषय में हमने ये सीखा है कि जब हम डेली बेस में जो हम पढ़ते हैं वो हमने अपने हाथों से बनाया, तो
हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि नुमाइश का मकसद बच्चों को तदरीस के साथ साथ साइंसी इल्म से आगाही देना है ताकि बच्चों की छुपी सलाहियतों को उजागर किया जा सके। नुमाइश से बच्चों को ये मौका मिलता है कि वो अपनी तख्लीकी सरगर्मियों को और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। नुमाइश के इख्तिताम पर बेहतरीन मॉडल बनाने वाले तलबा तालबात को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। जिला विहाड़ी के गांव में एक ही घर के 4 अफराद बीनाई से महरूम है। इलाज की सहूलत मुयस्सर न होने के सबब पूरा खानदान माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बीनाई से महरूम खानदान किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट करेंगे बुरेवाला से मोहम्मद करीम सैफी। जिला बिहाड़ी के गांव 93 WB में एक घराना ऐसा भी है जिसके मकीन आंखों की बीनाई से मारूम होकर मौत की जिंदा तस्वीर बने हुए हैं। बूढ़ी लाचार मां के 2 बेटे और एक बेटी बीनाई ना होने की वजह से मेहनत मजदूरी से भी कासर हैं। घर में फाकों के राज ने 2 वक्त की रोटी से भी मारूम कर रखा है। बीनाई से मारूम लाचार मां और बेटा किसी मसीहा के मुंतजिर है। असी नबीने 4 घर दे, मेरी बच्ची नबीनी, मेरे 2 पुत्र भी नबीने, मैं आप भी नबीनी। साडा करन वाला कोई नहीं, मैं बेवा, साडा करन वाला है ही कोई ना, तो सानू इमदाद कीती जावे। असी 93 च रहने, बिहाड़ी 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਨਬੀਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਬੀਨਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਬੀਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਬੀਨੀ ਹੈ, ਵਾਲਦ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। गवर्नमेंट मेरे अगे अपील है भी साड़ी कुछ मदद की जाए। गुर्बत और इफलास में जकड़ा हुआ ये खानदान हालात के रहम करम पर किसी मसीहा या हुकूमती इमदाद का मुंतजिर है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम कबीरवाला में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों से 800 से ज़ायद तलबा ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। चौधरी राहिल रियाज की रिपोर्ट। खसूसी बच्चों को माशरे का कारआमद फर्द बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया खसूसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम कबीरवाला में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद हुआ। स्पोर्ट्स गाला में 8 खसूसी एजुकेशन स्कूल के 800 से ज़ायद तलबा ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला में कुव्वत गुआई समाज से महरूम बच्चों ने सुफियाना कलाम पेश करके दाद भी वसूल की। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर कबीरवाला की स्पोर्ट्स इंचार्ज मिस आनसा यूसुफ माशाल्लाह से हुकूमत पंजाब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 10 साल बाद दोबारा से हमें मौका दिया है कि हम पंजाब लेवल पे आके अपने बच्चों को इस तरह से आगे लेके आए। कबीरवाला खसूसी एजुकेशन की प्रिंसिपल और स्पोर्ट्स इंचार्ज का इस मौके पर कहना था कि मजूर बच्चे सलाहियतों में किसी से कम नहीं हैं। अल्लाह ताला ने खसूसी बच्चों को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। मजीद उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिला भर में अव्वल पोजीशन हासिल की है और अब डिवीजन लेवल पर भी हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे। जबकि स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर खसूसी बच्चों का कहना था कि हमने जीत कर कबीरवाला का नाम रोशन किया है और मजीद करते रहेंगे। कैमरामैन टीम की हमरा चौधरी राहिल रियाज, सच न्यूज़, कबीरवाला। डुडियाल में इलेक्शन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार गुलाम अब्बास खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे आसिफ अली नाइक। डुडियाल में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हाजी दिलदार हुसैन की रिहाइश पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार गुलाम अब्बास खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल चकवाल चौधरी खुर्शीद बेग ने खिताब के दौरान तमाम तर इख्तलाफात को खत्म करते हुए अपने दोस्तों के हमरा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अब्बास खान के साथ चलने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने मजीद कहा कि बरसों पुरानी रफाकत जो कि कुछ सियासी वजूहात से दूरी का सबब बनी, इस दूरी को खत्म करके सरदार गुलाम अब्बास के साथ चलने का ऐलान करता हूँ। इंशाल्लाह पहले भी मौका नहीं मिला है, पहले भी जितने भी इलेक्शन हुए आपके साथ खड़े रहे हैं, आपके हुक्म की तामील की है। आइंदा भी इंशाल्लाह जो इलेक्शन होगा स्पेशल आपका इलेक्शन होगा। तकरीब के इख्तिताम पर तकरीब के मेजबान हाजी दिलदार हुसैन ने सरदार अब्बास खान को और उनके साथ आने वाले दोस्तों और चौधरी खुर्शीद बेग ग्रुप का अपनी रिहाइशगाह आमद पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली नाइक, सच न्यूज़, डोडियाल। चुनिया में किसानों ने रवायती तरीके से गुड़ बनाना शुरू कर दिया। खस्तापन की वजह से गुड़ बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है। रिपोर्ट करेंगे मेहर अजीज जताला। वलैती मिठास अपनी जगह, मगर गुड़ की देसी मिठास जो सदियों से चली आ रही है, इसका मज़ा ही कुछ अलग है। मौसम सरमा का आगाज होते ही चूनिया के इलाकों में देसी गुड़ बनाने का अमल शुरू हो चुका है। शुगर मिलों के सताए परेशान किसानों ने गुड़ बनाने के लिए बेलने लगा लिए हैं। गुड़ बनाने का हुनर पंजाब के किसानों में सदियों से चला आ रहा है। बेहतरीन गुड़ बन रहा अपने सामने
ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ भी अपने कार इस्तेमाल करने वास्ते भी। यहाँ गुड़ खरीदने के लिए आते हैं क्योंकि लोगों ने चीनी की बजाय गुड़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चूनिया का गुड़ बड़ी बड़ी मंडियों में भेज कर फरोख्त किया जाता है। किसानों का कहना है कि गुड़ बनाना अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है, मगर खाद बीज जरिए दवाइयात महंगी होने की वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत अगर तामन करे तो ये कारोबार काफी हद तक वसी हो सकता है। कैमरा टीम के साथ मैं उजैर जताला, नुमाइंदा सच न्यूज, तहसील चूनिया। मेलसी के इलाके सरदारपुर झंडेर में वाक़ मसूद झंडेर रिसर्च लाइब्रेरी तकरीबन 125 साल पुरानी है, जहां 2,88,000 कुतब और 4,085 मखतूतात मौजूद हैं, जिनमें हाथ से लिखे गए 1153 कुरान पाक के नुस्खे भी रखे हुए हैं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शरीफ वट्टू। मेलसी से 20 किलोमीटर के फासले पर सरदारपुर झंडीर में वाक़ मसूद झंडीर रिसर्च लाइब्रेरी तकरीबन 125 साल पुरानी है, जिसकी बुनियाद सरदारपुर झंडीर के जिम्मेदार गुलाम मोहम्मद ने 1890 में रखी। मियां मसूद झंडीर, मियां गुलाम अहमद झंडीर और उनके भाई को चंद सौ किताबें अपने दादा से विरसा में मिली और किताबों और इल्म से मोहब्बत में आपने अपने भाई के साथ मिलकर इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी बना दिया और इसका नाम मसूद झंडीर रिसर्च लाइब्रेरी रख दिया। बड़े भाई किताबें इकट्ठी करते थे, मंझले भाई तालीम से फारिग हो गए, वो साथ शामिल हो गए, मैंने ला किया, मैं साथ शामिल हो गया। इस तरह 3 भाइयों का ये एक फैमिली की हॉबी थी। लाइब्रेरी के मुंतजिम जिम्मेदार मियां गुलाम अहमद झंडीर का कहना है कि अगस्त 2014 के अवाइल में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने उन्हें कौमी विरसा की हामिल तारीखी, दीनी, सकाफती और अदबी किताबों को जमा और महफूज करने पर सिविल सदारती तमगा इम्तियाज के एजाज से नवाजा। मियां मसूद अहमद झंडीर, गुलाम अहमद झंडीर और उनके भाई आज भी जहालत की जुल्मतों में इल्म का झंडा उठाए बड़े फख्र से अपने बुजुर्गों की रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। उनका कहना है कि ये लाइब्रेरी तकरीबन 5 एकड़ में फैली हुई है और यहाँ रिसर्च के लिए आने वालों के लिए खूबसूरत आबशार, आराइशी और ज़िबाइशी पौधे भी लगाए गए हैं। उन्हें किताबों के साथ साथ पौधों से भी खूब लगाव है। लाइब्रेरी के चारों अतराफ में सरसब्ज पौधे दिलकश माहौल बना रहे हैं। लाइब्रेरी में इस वक्त 2,88,000 कुतब, 1,35,000 रसाइल और 4,050 मखतूतात मौजूद हैं। इनमें 90% किताबें खरीदी गई हैं, जबकि 10% किताबें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से तहाइफ की सूरत में दी गई हैं। लाइब्रेरी में 8 कुशादा हल, ऑडिटोरियम, मल्टीमीडिया, वर्क स्टेशन, स्कॉलर हॉस्टल भी मौजूद है, जहां उनको खाना और रिहाइश भी दी जाती है। मियां गुलाम अहमद झंडीर के मुताबिक साल 1980 के बाद MA, MPhil, PhD के मुहक्किकीन को लाइब्रेरी से मुस्तफीद होने की सहूलत दी गई है, जिसके बाद मुहक्किकीन मशरकी और अंग्रेजी जुबानों में इस्तिफादा कर रहे हैं। इनके मुताबिक ये प्राइवेट लाइब्रेरी होने के बावजूद किसी भी रिसर्च लाइब्रेरी से बेहतर अंदाज में तहकीकी मैदान में खिदमात सरअंजाम दे रही है। पाकिस्तान बल्कि क्या पूरी दुनिया तो लोग आते हैं इतने रिसर्च वास्ते, तो इस लाइब्रेरी का जो नाम है मसूद झंडीर रिसर्च लाइब्रेरी है जी, तो 1890 तो शुरू किया गया किताबों को इकट्ठा करना। मसूद झंडीर रिसर्च लाइब्रेरी पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ है, जहां एक स्कॉलर अपनी प्यास को बुझा सकता है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया के स्कॉलर्स को यहां आना चाहिए ताकि वो यहां से भरपूर इल्मी फ़ायदा हासिल कर सके। अपनी मदद आप चलने वाली इस प्राइवेट लाइब्रेरी से मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स, तलबा और असातिज़ा मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। लाइब्रेरियाँ तारीख़ और मुस्तक़बिल से रोशनास करवाने के लिए एक अहम ज़रिया हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ वट्टू, सच TV, मेलसी। सच के पाकिस्तान से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।